Good evening, students. Today we have to discuss about the third lecture about the same topic, the reflection and refraction. Still, we are discussing about that reflection only. In a before classes, we are already completed about the plane mirror. We are not discussing about the irregular mirror, diffuse mirror. We are not going to discuss. Just we are discussing about that regular types of mirror. In regular, we plane already completed. Now about the spherical mirror, we have to discuss today. Here, what you have to learn today about the spherical mirror. Two types of spherical mirrors are there. One is the concave, and another is the convex. Related to that, both the mirror we have to discuss today. Terms related to the spherical mirror. What are the terms are there? What is the pole? What is the radius? Radius of curvature, principal axis, focus. That terms also we have to discuss in these topics. Focus of spherical mirror. Here actually two types of focus are there. That one is the real one, another is the virtual one. That one also we have to discuss. That is converging as well as diverging focus. Rules of the image formation by the spherical mirror. There are some rules are there, basic rules are there. How the image is going to form. That rules also we are going to discuss today. Use of spherical mirrors. Where we are using the spherical mirrors. That one also we have to discuss. Somewhere we have to find the smaller objects. Now many are using that. Many are someone we are trying. So many times we have to find the smaller objects as well as big objects. It is easy to with the help of the mirror. That one we have to discuss today. Here spherical mirrors. If you are observing an image, you can easily analyze which kind of the spherical mirror it is. Here given the objects. The one object is clicking the somewhere, and he is observing the persons in the image, the mirror. The image is in the mirror. Can you analyze which kind of mirror it is? First one, it is a two options are there. Which one? Concave, and it is a convex. How to analyze? In convex mirror, the objects always erect and smaller in size. यहाँ पे आदमी क्या दिख रहा है? फोटो निकालते समय छोटा दिख रहा है और सीधा है, टेढ़ा हुआ, उल्टा हुआ क्या? नहीं. तो यहाँ पे इमेज क्या है आपकी? उल्टी हो गई है ना. तो यहाँ से आपको एनालाइज हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट्स कौन से इमेज में, कौन से मिरर में किस तरह से ऑब्जेक्ट्स आपका दिखता है ना. तो यहाँ पे बताया स्फेरिकल मिरर में दो टाइप से. एक्चुअली दीज आर बोथ आर द पार्ट ऑफ द स्फीयर. ये स्फीयर है, एक्चुअली स्फीयर नहीं है, ये सर्कल है. Sphere is a three-dimensional figure. Okay, and if suppose if you are considering this the center of the sphere, and if you are the silver polish surface from away from the center, ये center है, तो यहाँ पे silver polish आप कहाँ से, यहाँ से करें suppose. Okay, this is kind of the mirror is known as the concave mirror. वो क्या होगा तुम्हारा? Concave. अब at the same time if you are silver polishing from the toward the center, है ना, इसके सेंटर के बीच का एरिया क्या होता है तुम्हारा? पोल. इसे क्या बोलते हैं अपन? पोल. पोल क्या है? जो कर्व के सेंटर का पार्ट, जो तुम्हारा टुकड़ा है, स्फीयर है, उसका सेंटर का पार्ट क्या होता है तुम्हारा? पोल. सिर्फ इतना रखने का. ये सिल्वर पॉलिश जो है, पॉलिश सरफेस, एक्चुअली रिफ्लेक्शन क्यों आता है? बिकॉज ऑफ ओनली पॉलिश सरफेस. पॉलिश सरफेस होता है इसलिए क्या रिफ्लेक्शन दिखता है अपने को. देखिए अपन, है ना. तो मिरर क्या है? मिरर क्या है? ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है. ग्लास में से लाइट आपका आर पार जाएगा, इसलिए क्या करते हैं अपन? सिल्वर कोटिंग. यहाँ से क्या मिरर का क्या लाइट का तुम्हारा रिफ्रैक्शन होगा. उस तरह से अपन क्या करते हैं, इसको डिजाइन करते हैं. यहाँ पे कर्व में सिल्वर कोटिंग अपन आउटसाइड से देगा कॉन्केव मिरर. ये कौन सा होगा तुम्हारा? कॉन्केव. केव का मतलब पता है आपको? कैसी होती है केव? कहाँ पे होती है? गुफा अंदर होती है ना. ये अंदर है, देखो ये. कॉन्वेक्स यानी फुला हुआ, ये क्या है तुम्हारा? कॉन्वेक्स है ना. ये कॉन्वेक्स मिरर है. तो ये मिरर क्या है तुम्हारा? कॉन्वेक्स, और ये कॉन्केव. तो अभी ये मिरर में क्या है तुम्हारा? इसे कहते हैं अपन, इसका जो फोकस जो है वो आएगा तुम्हारा रियल वन, है ना. इसका क्या है? वर्चुअल. अब यार देखना है अपने को. तो यहाँ पे दिखाया देखो अभी मिरर्स. यहाँ पे दो स्पेरिकल पार्ट्स बताया, और हमेशा आपको याद रखना है. तो यहाँ पे मिरर है, यहाँ पे उसका फोकस पॉइंट ये 2F. 2F का मतलब भी क्या होता है? इसके सेंटर भी बोलते हैं अपन. 2F का मतलब क्या होता है तुम्हारा? सेंटर, है ना. तो जो मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है, इसे क्या कहते हैं अपन? पोल. इसे क्या कहते हैं अपन?
पोल यहाँ पे नहीं मेंशन किया है आपके बुक में या इसमें स्लाइड्स में, तो यहाँ पे इस याद रखो आप, इसको क्या कहेंगे आप, पोल। जो मिरर का स्पेयर का सेंटर पार्ट होता है उसे क्या कहोगे आप, पोल, है ना। तो इफ द लाइट इज कमिंग फ्रॉम देयर, लाइट कमिंग इधर से, लाइट इधर से आ रही है, इसका मतलब सिल्वर कोटिंग क्या है, यहाँ से सिल्वर कोटिंग, ये सिल्वर कोटिंग है, लाइट इधर से आ रही है और ये झुका हुआ है, इसका मतलब कौन सा टाइप का मिरर होगा तुम्हारा, है कॉनकेव। ये क्या होगा तुम्हारा, ये होगा कॉनकेव मिरर। और ये अभी लाइट इधर से आ रही है, फुला हुआ है बाहर से, तो ये क्या, कॉन्वेक्स, बराबर। ये क्या बन गया आपका, कॉन्वेक्स। तो यहाँ पे इसके 2f का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, द लाइनिंग ज्वाइनिंग फ्रॉम द सेंटर फोकस एंड द पोल, ये लाइन सबको ज्वाइन कर ली, देखो ये लाइन मारेगा एक यहां से, है ना। द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम द सेंटर या तो 2f बोलो, फोकस एंड द पोल, दिस लाइन इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं उसे अपन, प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये क्या है तुम्हारा रिफ्लेक्टिव सरफेस मिरर का, जो यहाँ पे से क्योंकि सिल्वर प्लॉइस बाहर से, तो ये मिरर क्या करेगा, लाइट को तुम्हारे यहीं पे रिफ्लेक्ट करेगा। इसका रिफ्लेक्टिव सरफेस यहाँ पे, लाइट इधर से है तो रिफ्लेक्ट यहाँ करेगा, वही साइड करेगा, है ना। तो अभी आपने इसको देखना है फोकस पॉइंट कैसे आते हैं, इसमें भी वही लॉज है अपने, कौन से, जो सिंपल लॉज अपन इस्तेमाल करते थे किसमें, प्लेन मिरर में। सिर्फ इसमें याद क्या रखना है आपको, प्लेन मिरर में अपन नॉर्मल निकालते थे, बराबर है। इसमें रेडियस एक्ट्स एज नॉर्मल, इसमें रेडियस ही क्या करेगी, नॉर्मल का काम करेगी। इसे और आसान हो गया, है ना। रेडियस क्या कर रही है, इसमें नॉर्मल का काम कर रही। बाकी के लॉस पता है आपको, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम है, बराबर है ना। और आर लाई इन सेम प्लेन एंड अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल, तो सेम लॉज यहाँ पे भी वेरीफाई हो गए। तो देखिए यहाँ पर अभी नेक्स्ट में यहाँ पे बताया पार्ट्स ऑफ द मिरर्स, यहाँ पे सेंटर ऑफ द कर्वेचर से सेंटर पॉइंट्स, है ना। जो कर्वेचर का सेंटर पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं अपन, सेंटर ऑफ द कर्वेचर। बोथ द मिरर में सेम, द सी इज द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। और सी को काफी बार क्या कहा जाता है, 2f भी कहा जाता है ना। मैं काफी बार क्या कहा जाता है, 2f इज बिकॉज ऑफ इट इज आफ्टर विल गेट द रिलेशन डबल ऑफ फोकल लेंथ, ओके। यहाँ पे देखो, ये द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम द पोल एंड द सेंटर, पोल और सेंटर में जाने वाली लाइन कौन सी तुम्हारी, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये एक्सिस लाइन को क्या कहोगे आप, प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन फ्रॉम द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे दिखाया देखो, प्रिंसिपल एक्सिस, बराबर है। तो ये क्या है तुम्हारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ से डिस्टेंस फ्रॉम, फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द पोल, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द पोल फिक्स डिस्टेंस है पूरा, सिर्फ यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी आ सकता है, फिक्स डिस्टेंस है फ्रॉम द कर्वेचर, कर्वेचर से सेंटर से, द फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द कर्वेचर ऑफ द सरफेस सर्कल, और सॉरी रिफ्लेक्टर और मिरर इज नोन एज द रेडियस। ये क्या होगी तुम्हारी, रेडियस ऑफ द कर्वेचर। कर्व पे जो आ रहा है ना, जो पूरा रोड, ये भी लाइन होगी तुम्हारी रेडियस होगी, ये भी होगी तुम्हारी रेडियस होगी। तो फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इज नोन एज द रेडियस। तो यहाँ पे रेडियस तुम्हारी, यहाँ पे बताया, ये रेडियस बताया, है ना। तो ये हेलो सर ने बाकी का पार्ट कट कर दिया, इतना ही पार्ट के बारे में देखा, बाकी का पार्ट कट करके यहाँ पे ये जो यहाँ पे सिल्वर कोटिंग, ये जो व्हाइट ये तुम्हारा शेड दिख रहा है, ये क्या तुम्हारा सिल्वर कोटिंग है, दिस पॉलिश सरफेस। अभी यहाँ पे पॉलिश सरफेस क्या है तुम्हारा, अवे फ्रॉम द सेंटर, सरफेस कहाँ से, ये सेंटर यहाँ पे, सेंटर के दूर है, पॉलिश सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर। तो फिर ये मिरर क्या, कौन सा होगा तुम्हारा, कॉनकेव मिरर, समझ में आ गया है। और यहाँ पे सेंटर का है, सिल्वर कोटिंग का है तुम्हारी इनसाइड टुवर्ड द सेंटर, सेंटर के नजदीक है ना। तो ये क्या होगा तुम्हारा, कॉन्वेक्स, ये बन गया कॉन्वेक्स। कंफ्यूजन दूर, कॉन्वेक्स कॉनकेव क्लियर, हाँ वेरी गुड। तो यहाँ पे टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, कौन से टर्म्स देखे अपन ने अभी, पोल, पोल क्या होता है बोलिए, पोल क्या है, हाँ सेंटर ऑफ दैट ग्लास ऑफ स्फीयर, सेंटर, और क्या है तुम्हारा, प्रिंसिपल एक्सिस, वेरी गुड। द लाइन पासिंग फ्रॉम दैट पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस देखेंगे अपन अभी, फोकस क्या है तुम्हारा, 2 टाइप्स ऑफ फोकस आर देयर, कॉन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। वो देखना है, वो बताऊंगा मैं आपको कैसे आता है फोकस, कैसा आता है, और लॉज ऑफ मिरर आपने को तो पता ही है ना। तो इतने पॉइंट्स अपन अभी इसमें देख चुके हैं। तो टर्म्स रिलेटेड टू द स्फीयर, तो यहाँ पे देखिए अभी फोकस, तो यहाँ पे देखिए, तो ये फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर, तो आपने बताया मैं कैसा आता है फोकस। तो फोकस हमेशा क्यों आता है हाफ, वो भी बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले क्या बताया मैंने आपको, तो आपको क्या याद रखना है, जस्ट मिनट, आपको क्या याद रखना है आपको, कि रेडियस एक्ट्स एज अ नॉर्मल, रेडियस क्या कर रहा है तुम्हारा, नॉर्मल कैसा
काम कर रहा है। तो ये कौन सा मिरर है, सपोज यहाँ पे अपन कैसे कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे दिखा रहा है शायद सिल्वर कोटिंग यहाँ साइड से, बराबर है। तो यहाँ पे सिल्वर कोटिंग, ये जो व्हाइट कलर है, सपोज वी कैन अज्यूम द सिल्वर कोटिंग, है ना। तो अभी क्या करेंगे अपन, सपोज ये व्हाइट साइड सिल्वर कोटिंग, तो फिर लाइट सपोज यहाँ से आएगा इस पे, बराबर है कि नहीं। लेट दीज आर सपोज दिस इंसिडेंट रे, ये क्या है तुम्हारे इंसिडेंट रे। तो यहाँ पे इंसिडेंट रे कहाँ से आएंगे, अरे यार कैसा है, यहाँ से आएंगे, यहाँ से इंसिडेंट रे आएंगे यहाँ पर, बराबर। दोनों तरफ ऐसे हुआ क्या रे फिगर, चलो कोई बात नहीं। तो एक सिल्वर कोटिंग में कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। तो यहाँ पे सिल्वर कोटिंग क्या है तुम्हारे टूवर्ड सेंटर, और यहाँ पे भी सिल्वर कोटिंग क्या है तुम्हारे टूवर्ड सेंटर ही है, वो तो वही साइड से है, खाली इन्होंने बताने का तरीका अलग है इनका। तो इसका मतलब दोनों भी मिरर कौन से तुम्हारे, ये कॉन्वेक्स, दोनों मिरर क्या है तुम्हारे कॉन्वेक्स। फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर, चलो ये कॉन्वेक्स मिरर है, अपन एज्यूम करेंगे। अभी नहीं तो मैं इसको करता हूँ, अभी मैं क्या करता हूँ, ये मिरर को सपोज ये मेरी क्या है सिल्वर कोटिंग है सपोज, अभी क्या बन गया है कॉन्केव, है ना। मैंने कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो अभी क्या करना है, मुझे लाइन मारना है, और ये सपोज ये डिस्टेंस इतना है, सपोज मैं कंसिडर करता हूँ कि ये एफ होगा, तो सी भी हो सकता, पता नहीं मुझे। सपोज ये कैसे स्पेयर का सी होगा, है ना। तो ये क्या कर रहा है तुम्हारा, कैसा कर रहा है तुम्हारा नॉर्मल का जैसा, जो भी रेडियस आएगा नॉर्मल। अब ये लाइन सीधी सपोज इंसिडेंट रे, ये क्या है तुम्हारी आने वाली रे, क्या है तुम्हारी इंसिडेंट रे। तो ये क्या होगी तुम्हारी, सपोज यहाँ पे बन गई। तो ये एंगल कितना हो गया आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, सेम। तो फिर ये रेज कहां से जाएंगी आपकी, यहां से। तो ये पॉइंट क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पे कट कर दिया, तो ये तुम्हारा आर। तो अब एक रेज पे नहीं समझ में आएगा आपको, और एक रेज डालो, ये रेडियस एक्स एज नॉर्मल, तो ये बन गया तुम्हारा एंगल ऑफ आई। तो फिर ये बन गया, फिर यही सेम एंगल गया, तो ये क्या बन गया तुम्हारा एंगल ऑफ आर। तो जहां पे जब सभी तुम्हारे जो पैरेलल लाइन जो आएंगे, और सब कहां मिल रहे तुम्हारे, ये पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो वो पॉइंट को क्या कहोगे आप, फोकस। एंड दैट पॉइंट इज नोन एज द कॉन्वर्जिंग पॉइंट। क्या कहोगे इसे, कॉन्वर्जिंग पॉइंट। समझ में आ रहा है। ये मिरर में कैसा है, सभी लाइन आप यहाँ पे एंगल लॉस तुम्हारा ओबे हो रहा है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लाइन आई तो यहाँ पे गई, नॉर्मल क्या एंगल तुम्हारा क्या जीरो है, बराबर है। बिकॉज दिस एक्स एज नॉर्मल, इंसिडेंट भी वही है और रिफ्लेक्टेड रे भी क्या हो गई, वही होगी। तो इसका मतलब क्या है तुम्हारा, और एक समझ में, सेंटर में से लाइन जाती होंगी तो वो सेंटर में से ही पास होगी। लाइन रूल्स भी यहाँ पे समझ में आएगा आपको। द इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग फ्रॉम वेयर, फोकस में से जा रहा है ना। तो अभी एज्यूम करेंगे कि ये मिरर छोड़ दो, कौन सा होगा। अभी मैं इसको मेरी तरफ से सिल्वर कोटिंग दे रहा हूँ मैं। अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, सिल्वर कोटिंग देता हूँ फ्रॉम द टुवर्ड द सेंटर। ये सिल्वर कोटिंग है, सिल्वर कोटिंग क्या है, ये है। अभी सपोज ये क्या है तुम्हारी, एज्यूम करो कि दिस इज इंसिडेंट रे, करेक्ट है। हाँ, तो ये कंसिडर करेंगे अपन, ये क्या है तुम्हारा रेडियस। तो मैंने बताया सर, आपने क्या बताया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी द एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज इक्वल। तो यहाँ पे क्या है, इसको थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ मैं, क्योंकि क्या है तुम्हारी वर्चुअल फोकस है ना। ये भी क्या सेंटर तुम्हारा यहाँ पे है, रे अंदर आएगी क्या, नहीं आएगी। तो ये रेज क्या है तुम्हारी, जाएगी बाहर जाएगी। तो ये एंगल कितना हो गया तुम्हारा आई। तो ये सेम एंगल कितना हो गया पॉइंट तुम्हारा आर। इज इट क्लियर। तो ये क्या तुम्हारे डाइवर्ट हो रहा है, जा रहा है, डाइवर्जन हो रहा है। तो मैं क्या करूँ, इसको वर्चुअल में निकाल रहा हूँ, यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा हूँ, दिख रहा नहीं है लेकिन एंड मिरर की ये साइड में निकाल रहा हूँ मैं। तो ये कहाँ पे, यहीं पे क्या आएगा, है ना। इसी तरह से मैं यहाँ पे भी निकालता हूँ कोई रेज, इंसिडेंट रे, ये तुम्हारा क्या है नॉर्मल, बराबर है। ये क्या है तुम्हारा एंगल आई, तो उतना ही एंगल क्या होगा तुम्हारा आर। ये काम मिल गया आपका फोकस। पर आप देख रहे होगे ये आ रहा है, तो ये लाइट कैसे तुम्हारे रे कैसे बिखर रहे हैं, है ना। तो इसे क्या करें अपन, डाइवर्जिंग ये क्या है, रेस तुम्हारे क्या है अंदर मिल गए यहाँ पर, तो इसे क्या कहोगे अपन, कॉन्वर्जिंग। इसे क्या कॉन्वर्जिंग, सब अंदर मिल गए ना, तो इसे बोलते कॉन्वर्जिंग। और यहाँ पे क्या है, फेल रहे लाइट, दिस इज नोन एज द डाइवर्जिंग। ये क्या है यहाँ पे दिख, समझ में आ रहा है, फोकस क्या है तुम्हारा, रियल है। ये क्या है तुम्हारा फोकस रियल। यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या आपको, नहीं। यहाँ पे लाइट यहाँ से निकल रहे लाइट, तो सब रेज क्या है तुम्हारे यहाँ से बिखर रहे हैं। कहाँ से बिखर रहे तुम्हारे, या सेंटर से निकल रहे हैं। इसलिए क्या ये पॉइंट क्या करोगे आप, डाइवर्जिंग पॉइंट्स और डाइवर्जिंग फोकस, और आल्सो नोन एज द वर्चुअल।
ये क्या होगा तुम्हारा वर्चुअल और नॉन रियल। इज इट क्लियर? समझ में आ गया है फोकस क्या होता है? वेरी गुड। देखिए तो यहाँ पे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन स्पेरिकल में आपको रूल्स देखना है अभी। रूल्स फॉर्मेशन इन ना स्पेरिकल में तो क्या है, बेसिकली 4 रूल्स है ना। तो लेट मी कंसीडर कि एक अपन अपने हिसाब से करेंगे। हमेशा मेरे ख्याल से इन्होंने सिल्वर कोटिंग टूवर्ड सेंटर ही करा है, तो मैं क्या एज्यूम करता हूँ कि ये क्या है, मेरे हिसाब से मैं सिल्वर कोटिंग करता हूँ इसको, तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा सिल्वर कोटिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, और यहाँ पे क्या करूंगा मैं टूवर्ड द सेंटर। रूल्स, फर्स्ट रूल, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रूल सबकी तरफ सेम, इसके लिए भी वही और उसके लिए भी वही है ना। ये क्या कंसीडर करे अपन ने, सेंटर कंसीडर करे, बराबर है ना। और उसका हाफ क्या होता है, फोकल लेंथ। तो इसका ये क्या है तुम्हारा रियर वन, इसका फोकल लेंथ कहाँ आएगा, यहां पर। ये पोल है, इसका फोकल लेंथ कहाँ आएगा, यहां पर। इज करेक्ट? ये क्या होगा तुम्हारा पोल। फर्स्ट रूल क्या है, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्या इंसिडेंट रे क्या है तुम्हारी, इट पासिस फ्रॉम वेयर, वेरी गुड, इट पासिस फ्रॉम द फोकस। ये आ गई। अभी यहां पे भी वही रूल, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अभी यहाँ पे रेस यहां से तो नहीं आएंगी लाइट कैसे आएंगी, वहां से आएंगी। अभी इट पासेस टू द फोकस, तो यहाँ पे फोकस तो कैसा है तुम्हारा वर्चुअल है, ऐसी जाएगी क्या, तो यहां से क्या जाएगी तुम्हारी, इस तरह से जाएगी, ये वर्चुअल फोकस। रे कैसे ऐसी आई और उधर से गई। फर्स्ट रूल क्लियर हो गया, समझ में आ गया, गुड। तो लेट मी चेक, चलो और इसमें फिगर दिया, इसमें 2 रूल बताता हूँ मैं। और क्या एक देखिए, सेकंड रूल, द लाइन इज अनडिविएटेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइन जाती होंगी, वो रे से जाती होंगी, तो क्या लाइन तुम्हारी क्या होगी, अनडिविएटेड। डिविएट होगी क्या, नहीं होगी, है ना। देखिए तो अभी सपोज ये लाइन तुम्हारी डिविएट थी क्या, यहां से आई और यहीं से गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से डिविएट हुई क्या लाइट, ये नहीं। तो यहाँ पे भी वैसे देखो, ये लाइट आई समझो तुम्हारी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई और सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, डिविएट हुई क्या, नहीं। चलो और निकालता हूं मैं। सपोज दिस लाइन इज गोइंग ऑन, यहां पे आ गई और वहीं से क्या जाएंगी तुम्हारी वापस, समझ में आ गया। तो कैसे भी निकालो आप, ये ऐसे लाइन, सॉरी यहां से नहीं आएगी वो, तो थोड़ा सा ये लाइन निकाल, ये वर्चुअल है, तो क्या लाइट तुम्हारी क्या है, वहीं से आई वहीं से गई। इस सेकंड रूल समझ में आ गया। हाँ हाँ। और क्या है एक रूल इसका, क्या है, ये रिवर्स सेम। तो 2 रूल इधर बताता हूं मैं आपको अभी, ये इमेज में 2 रूल समझ में आ गए। कौन सा रूल बताया मैं, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट्स पासिंग फ्रॉम द फोकस एंड फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज अनडिविएटेड। सेंटर ऑफ कर्वेचर जाने वाले डिविएट हो रही है क्या, वहीं से जा रही है और वहीं से आ रही है, वेरी गुड। और क्या देखा अपन ने, फोकस ऑफ सेंटर, फोकल लेंथ क्या होती है, हाफ ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस की फोकल लेंथ क्या होती है, हमेशा हाफ। तो अभी देखिए, तो मैं फिर से क्लासिफाई करता हूं, ये कौन सा मिरर है तुम्हारा कॉनकेव, और ये कौन सा है तुम्हारा कॉन्वेक्स। साथ में अपन दोनों भी रूल्स पढ़ लेंगे। अभी तीसरी प्रॉपर्टीज क्या है अपन देखें, वो तो रूल ही है ना। तो ये क्या है तुम्हारा सेंटर, ये क्या है तुम्हारा फोकस, ये फोकस, सेंटर, पोल, पोल। अब तीसरा रूल देखो, इफ द लाइन पासिंग फ्रॉम द फोकस इट विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। लाइन तुम्हारी फोकस में जा रही है समझो कोई, तो क्या जाएंगी तुम्हारी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे लाइन फोकस में से जाएगी क्या, यहाँ पर, तो लाइन समझो तुम्हारी ऐसी जा रही है, फोकस में से जा रही है, वो तो ऐसी, ये वर्चुअल फोकस है, ऐसी आ रही तो जाएंगी कहाँ से जाएंगी तुम्हारी पैरेलल टू द, समझ में आ गया। हाँ। और तो तीसरा रूल तो शायद आपको पता ही हो गया, तो वो क्या करते तुम्हारे, दे आर मेकिंग द इक्वल एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द पोल। पोल पे कितना है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना एंगल ऑफ, जैसे कि सपोज यहाँ पे आ रहा है लाइट, रे आ रही है, सपोज ये आ गई, इसमें एंगल आई बनाया ये, और उतना ही क्या बनाएगी वो आर, समझ में आ गया।
सेम उसी तरह से ये पोल पे ये इसको एक्सटेंड करता हूं मैं प्रिंसिपल एक्सिस को, जितना I उतना ही R, दे आर मेकिंग इक्वल एंगल ऑन दैट पोल, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्चुअली पोल पे नहीं सभी तरफ इक्वल करते हैं, लेकिन आपने कंडीशन अपन डायग्राम निकालने के लिए आपको 4 रूल्स मालूम होंगे तो आप यू कैन ड्रॉ एनी डायग्राम्स। तो डायग्राम निकालने के लिए मिनिमम 2 रूल्स इज रिक्वायर्ड, 2 रूल्स आप इस्तेमाल करते, 2 रूल इस्तेमाल करते तो आप कोई भी डायग्राम निकाल सकते हो। मालूम होना चाहिए आपको चारों भी, बट इट इज सफिशिएंट इफ यू नो द 2 रूल्स आल्सो। 4 रूल समझ में आ गए इसमें, इसमें 2 बताया उसमें 2 बताया। इसमें कौन से बताया? द इंसिडेंट रे इज पासिंग फ्रॉम द फोकस, रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इफ द इंसिडेंट रे पासिंग फ्रॉम द फोकस, रिफ्लेक्टेड ray parallel to the principal axis, correct? And they are making equal angle of incidence and equal angle of reflection on the pole. They are making equal angle of incidence and equal angle of reflection on the pole because we are acting the radius acting as a normal. Normal कैसा काम कर रही है, तो वहां पे तुम्हारे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गए? सेम। इज इट क्लियर नाउ रूल? वेरी गुड। देन रिलेशन बिटवीन द R एंड F, अपन देखिए अभी दोनों मिरर में, तो यहाँ पे देखिए ये इसका सेंटर पॉइंट, तो यहाँ पे जब लाइन जब आ रहे हैं तो भी क्या कर रहे हैं, तुम्हारे कॉन्वर्ज हो रहे हैं, बराबर है। तो ये क्या है तुम्हारा फोकस पॉइंट, इट इज ऑलवेज द फोकस पॉइंट इज इन बिटवीन ऑफ द सेंटर एंड पोल। इसका मतलब ये डिस्टेंस क्या होता है तुम्हारा? सेम होता है। तो इसका मतलब CF प्लस FP इक्वल्स टू R होगा, है ना। फोकल लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द फोकल लेंथ, फोकस पॉइंट इज नोन एज फोकल लेंथ। तो ये क्या होगा तुम्हारा F, और ये भी क्या हो गया F इक्वल्स टू कितना हो गया R, 2F इक्वल्स टू कितना हो गया R। तो F कितना हो गया आपका? बोथ द केसेस द फोकल लेंथ इज अ हाफ ऑफ द रेडियस। ये भी केस में वही होगा और वो भी केस में वही। यहाँ पे सिर्फ कॉन्वर्जिंग में फिगर निकाला, वहां पे डाइवर्जिंग की फिगर निकालना पड़ेगा आपको, है ना। तो कंडीशन में क्या होगा तुम्हारा? सेम वही आएगा, फोकस सेंटर। तो ये क्या है तुम्हारा पोल। इसमें थोड़ा समझना इजी है इसलिए मैंने ये फिगर निकाला, है ना। तो यहाँ पे भी क्या आएगा तुम्हारा? F इक्वल्स टू R/2। समझ में आएगा रिलेशन। आपको रेडियस दी होगी तो फोकल लेंथ निकालने आना चाहिए, फोकल लेंथ होगी तो रेडियस निकालना है। हियर द यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर का यूज कहाँ करते हैं अपन? जहां पे ऑब्जेक्ट को क्या करना है, आपको स्प्रेड करना होता है, लाइट को स्प्रेड करना है। अभी देखो यहाँ पे क्या तुम्हारा डिश है या तो सोलर पैनल है ना। तो यहाँ पे सब लाइट आ रहा है, सपोज सब लाइट आ रहा है, तो क्या करेगा, एक जगह पे क्या करेगा, कॉन्वर्ज होगा, कॉन्वर्ज होगा। तो कॉन्वर्ज से लाइट को फैलाएगा, स्ट्रेट लाइन में लेके जाएगा। ये टॉर्च है, ये टॉर्च में बल्ब का है तुम्हारा फोकस पे है, तो फोकस पे करते बल्ब का लाइट इधर जाएगा और ये लाइट को सीधा यहाँ पे लगने के बाद में लाइट क्या जाएगा तुम्हारा टॉर्च में से सीधा निकलेगा। अपन देखिए फोकस में से लाइन जाने वाली क्या है, इफ द लाइन पासिंग फ्रॉम द फोकस, तो कहीं जा रही तुम्हारी, इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे बल्ब फोकस पे लगा है तो लाइन कहीं जा रही तुम्हारा सीधा लाइट, टॉर्च का लाइट कहाँ जाएगा तुम्हारा? आगे जाएगा, बराबर है। तो ये कौन का कहाँ का इस्तेमाल कर, जहाँ की आपने को सपोज स्पीकर, स्पीकर में देखिए आप स्पीकर का शेप कैसा होता है, कौन क्यों, आवाज आगे ढकेलने के लिए, है ना। तो यहाँ पे डिश, सोलर पैनल के भी देखिए आप, यहाँ पे आपका डिश का रहता है, डिश का LN भी होता है, पता है आपको? LN भी क्या है, फोकस पे होता है। सब रेज आते हैं कौन के, वहां पे फोकस करते हैं और अपने को सिग्नल मिलते हैं, है ना। वहां पे इसका ये टॉर्च में जहां पे अपने को फोकस करना है और रे को स्प्रेड करना है, वहां पे अपन इसका इस्तेमाल करते हैं। जहां पे इमेज अपने को बड़ी भी होना है, छोटी भी होना है, और यहाँ पे उल्टी भी मिलती है, और इक्वल साइज की हर टाइप की इमेज होना है, वहां पे अपन क्या करेंगे, अपन कॉन्केव मिरर इस्तेमाल करेंगे। कॉन्वेक्स कहाँ करेंगे? कॉन्वेक्स जहां पे आपको इरेक्ट इमेज होना है, सीधी इमेज होना है, छोटी इमेज होना है, जहां पे क्या करेंगे अपन कॉन्वेक्स। जहां पे देखिए अपन जैसे कि रियर व्यू तुम्हारे गाड़ी के पीछे देखो, आपको है ना, आपको गाड़ी देखना है, गाड़ी बहुत बड़ी होती है लेकिन आपको छोटे से आने में दिखती है गाड़ी पूरी, है ना। तो वहां पे क्या है तुम्हारा, पूरी गाड़ी दिख रही है, ट्रक भी दिख रहा है, इसमें आईना छोटा है। इसका मतलब ये कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर है ना। शेविंग के लिए आप तो फिलहाल नहीं करते होंगे, लेकिन शेविंग के लिए मिरर कौन सा होता है? कॉन्वेक्स मिरर, है ना। जहाँ पे आप देखो अब कैमरा अपने लगते हैं, कैमरा भी एक्चुअली कैमरा में लेंस होता है, लेकिन वो भी कैसा है, कॉन्वेक्स। तो क्या है, ऑब्जेक्ट को तुम्हारे को दिखा देगा वो। इज इट क्लियर नाउ? देखिए तो यहाँ पे क्या पढ़े अपन, यहाँ पे थोड़ा सा समरी।
स्पेरिकल मिरर्स टर्म्स एंड यूजेस क्या है देखिए स्पेरिकल मिरर में अपन ने आज स्पेरिकल मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकस पॉइंट, रियल फोकस, वर्चुअल फोकस, है ना, ये देख लिए। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन कितने रूल्स देखे अपन ने? 4 रूल्स। फर्स्ट रूल वाला क्या है तुम्हारा? इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग फ्रॉम फोकस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर अनडिविएटेड, वही रेंज से जाएंगे, है ना। थर्ड रूल वाला क्या है तुम्हारा? द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर सेम ऑन द पोल। और फोर्थ रूल क्या है? द इंसिडेंट रे इज पासिंग फ्रॉम द फोकस देन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो 4 रूल्स अपन ने देख चुके हैं। यहां पे कुछ क्वेश्चंस है आपको, देखिए। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस आर ट्रू फॉर प्लेन मिरर के लिए है क्या? हाँ है। कॉनकेव के लिए क्या? हाँ उसके लिए भी है। कॉन्वेक्स के लिए क्या? हाँ उसके लिए भी है। और सभी के लिए है। तो सभी ऑल स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, हर स्मूथ सरफेस जो है उसके लिए लॉज क्या है तुम्हारे? वैलिड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस? कौन सा स्टेटमेंट सही है? The incident ray, reflected rays and normal lie in a same plane. ये ऑप्शन तुम्हारा सही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ, ये भी सही है। इसका मतलब दोनों भी ऑप्शन सही है ना। द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन इज सही। द नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग द नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ लाइट, ड्यूरिंग द नॉर्मल द इंसिडेंस ऑफ लाइट क्या होगा तुम्हारा? देखो ये नॉर्मल है, द इंसिडेंट लाइन, तो क्या होगा तुम्हारा? द एंगल ऑफ इंसिडेंस, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड इज 0। नॉर्मल है, इंसिडेंट नॉर्मल है आपकी, और इंसिडेंट एंगल भी ये, इंसिडेंट यही है और ये भी रिफ्लेक्टेड। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 0 है। तो रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 0। तो दोनों की सम भी कितनी होगी? 0। तो मोस्ट करेक्ट आंसर कौन सा है तुम्हारा? डी। इज इट करेक्ट? गुड। तो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर ये, with the help of ray diagram to show that the angle of incidence is equal to the angle of reflections when the ray of incidence on convex and concave mirror। तो सेम दिखाना है आपको कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर। ये मिरर है तुम्हारा कौन सा? कॉन्केव। तो आपको दिखाना एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? सेम है। तो ये क्या है तुम्हारा? सेंटर एक्स एज नॉर्मल, तो ये तुम्हारा हो गया आई और आर। सेंटर, तो यहां पे निकालो आई और आर, सेम निकालना है ना, बराबर अब निकालो ज्योमेट्री से। मेरा थोड़ा एंगल थोड़ा बड़ा आया है। टू नेक्स्ट, एन इमेज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होना चाहिए यहाँ पे। ओके, कैसे लिखा रहे हो? ऑब्जेक्ट है ना, चलो। कैनॉट बी प्रोड्यूस बाय, तो हाँ देखिए, तो क्या बोल रहा है? एन इमेज ऑफ द सेम साइज दैट द ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय। इसमें कॉन्वेक्स में हमेशा क्या आएगा? इमेज छोटी आएगी, है ना। प्लेन मिरर में सेम आएगा, कॉन्केव में भी सेम भी आएगा, बड़ा भी आएगा, छोटा भी आएगा, वो सेम भी आ सकता है। पर कॉन्वेक्स में कभी सेम आएगा क्या? इट इज ऑलवेज डिमिनिश, ऑलवेज स्मॉल। तो कॉन्वेक्स आंसर करेक्ट है। देखिए यही था क्या अभी का? ये नेक्स्ट वाला। तो क्या पढ़े अपन ने? डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स रिलेटेड टू द कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स स्फीयर। पोल, पोल क्या है तुम्हारा? सेंटर ऑफ द स्फीयर, है ना, सेंटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट, एक्चुअली स्फीयर का पार्ट का है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस फ्रॉम देयर सेंटर टू द सर्कमफरेंस, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस का फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कमफरेंस। Principal axis, the line joining to the pole and center of curvature. Principal focus, converging or diverging point is known as the aperture. The surface of the mirror sphere is known as the aperture. Focal length, distance from the pole to the focal point or center to the focal point, because both are the same. Center to the focal point भी वही है और pole to the focal point, focus point, इसका वो भी दोनों भी क्या है? सेम है। एंड इट इज हाफ ऑफ द रेडियस, एफ इक्वल्स टू आर बाय 2। एनी हाउ इट इज हाफ ऑफ द रेडियस। नेक्स्ट वन, अरे आज जल्दी खत्म हो गया। इज एनीवन हैविंग डाउट्स?
टुडेज क्लास यस, किसका देखेंगे फिर कौन सा इसमें है क्या 40, अच्छा हाँ, तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम्स टू शो दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस एंड व्हेन द रे ऑफ इंसिडेंस ऑन द कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर। तो एक्चुअली ये विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम ही बताना है आपको, प्रूफ नहीं है इसका, ये तो क्या रूल है ना, ये तो रूल है, दिस इज द रूल। विद हेल्प ऑफ रे डायग्राम शो दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस। तो यहाँ पे क्या बताना है आपको, द रेडियस एक्ट्स एज नॉर्मल, रेडियस क्या कर रहा है तुम्हारा नॉर्मल जैसा काम कर रहा है। तो रूल्स क्या है आपका, द जब एंगल मेड बाय द नॉर्मल इंसिडेंट रे क्या होता है, द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। तो इसमें क्या होगा देखो, तो ये क्या है, ये इंसिडेंट रे है बराबर, द रेडियस एक्ट्स एज नॉर्मल, तो एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसी तरह से द एंगल मेड बाय द रेडियस एक्ट्स एज नॉर्मल and the refracted ray is known as the angle of refracted, है ना। तो ये दोनों भी क्या हो गए तुम्हारे एंगल सेम हो गए। तो यही रूल्स जो है वही, क्योंकि अपन यहाँ पता है इस एक्स है तो नॉर्मल, रेडियस क्या कर रहा है नॉर्मल, क्यों एक्ट कर रहा है नॉर्मल, कैसे सोच सकोगे आप, इसको टेंजेंट निकालो, आपको शायद मैथ्स में पता होगा, द एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट क्या होता है 90 डिग्री। नॉर्मल का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। सरफेस अपन एक रिफ्रैक्टर सरफेस निकालते हैं अपन, है ना, तो नॉर्मल का मतलब क्या है, सरफेस को क्या है परपेंडिकुलर है, नॉर्मल का मतलब ही परपेंडिकुलर, है ना। लेट वी मेक द नॉर्मल इन मैथ्स में करते हैं अपन, है ना, नॉर्मल मारो परपेंडिकुलर करो। तो यहाँ पे भी क्या है, ये क्या है तुम्हारा एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, यहाँ पे सरफेस पे एक लाइन निकालते हैं आप, और ये क्या है तुम्हारा रेडियस, तो हमेशा एंगल क्या होगा तुम्हारा 90, है ना। तो वहाँ पे क्या है तुम्हारा एंगल 90 डिग्री होगा। तो एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज ऑलवेज 90 डिग्री, और इसलिए क्या है तुम्हारा एंगल ऑफ ये इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा तुम्हारा इक्वल होगा, सेम होगा। ये तो रूल्स है, लॉ है ना, इसमें अपन बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वी हैव टू मेक द ड्रॉ द डायग्राम्स। यहाँ पे वही बताना है ड्राग्राम, दिस इज एक्ट एज ए नॉर्मल एंड दिस इज द रे ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द रे ऑफ दिस नॉर्मल, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द रे ऑफ रिफ्लेक्शन इज नोन एज एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दे आर ऑलवेज सेम। और कोई डाउट से क्या देखो, हाँ बोलिए कौन सा, ये कॉनकेव देखो कॉनकेव लेंस आएगा क्या, इमेज सेम साइज नहीं आएगा, कॉनकेव लेंस में वही प्रॉब्लम है, छोटा ही आता हमेशा, सेम नहीं, क्या बोल रहा, कैनॉट बी नहीं आना चाहिए, image of the same size as of the objects cannot be produced by, सेम साइज का ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए। अच्छा, सेम साइज का नहीं आना इसका मतलब क्या है, छोटा भी हो सकता है ना, तो सेम कभी नहीं आना चाहिए। अभी कॉनकेव में क्या होता है, कॉनकेव में हमेशा इमेज क्या आएगा तुम्हारा, ये देखो इसमें क्या आएगा, हमेशा ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या आएगा छोटा ही आएगा, हमेशा क्या आएगा छोटा, सेम साइज का कभी नहीं आएगा। कॉन्वेक्स में सेम साइज का आ सकता है, तो कॉनकेव इसमें लेंस दिया है, तो ये भी आंसर इसका करेक्ट है। अपन लेंस पे अभी गए नहीं, लेकिन लेंस में जब जाएगा इसमें क्या आएगा, हमेशा तुम्हारा ऑब्जेक्ट का लेंस इमेज क्या आएगा साइज छोटा आएगा, करेक्ट है आपका, है ना। तो ऑप्शन देने में गड़बड़ हो गया यहाँ पे, कॉनकेव लेंस ये भी सही है, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस। अभी जब लेंस में जब जाएंगे अपन, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्वेक्स में क्या आएगा तुम्हारा, इसमें साइज हर तरीके की इमेज आएगी, छोटी भी आएगी बड़ी भी आएगी और इक्वल साइज की आएंगी, पर ये लेंस में क्या है तुम्हारा हमेशा छोटी आएगी। अपना टॉपिक चल रहा था मिरर का, उन्होंने ऑप्शन दिया लेंस का, लेकिन ये भी आंसर सही है, करेक्ट, वेरी गुड। और कोई डाउट, मैं नंबर देखे परेशान हो गया, 42 नंबर नहीं होंगे शायद आपने करके मिला के, मेरे ख्याल से केमिस्ट्री मिला दे शायद आपने, ओके। विल stop today's session. If anyone having doubt, you can ask me. No?